हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। हम हमारे 4th चैप्टर पे हैं, ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज। ये लिया गया है सोशल साइंस के आर पास पार्ट 3 टेक्स्ट बुक से। ओके, सो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। In 1865, a man named Birsa was seen roaming the forests and villages of चौटनागपुर इन झारखंड। एक 1895 में एक मैन जिसका नाम है बीसा, वो भटकते हुए जा रहा था फॉरेस्ट में और गांव में ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। पीपल सेड ही हैड मिरेक्युलस पावर्स, ही कुड क्योर ऑल डिजीजेज एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। और लोग कहते थे कि उनके उनके पास एक जादुई शक्ति थी, वो सारे डिजीज़ेस को क्योर कर सकते थे और जो ग्रेन यानी कि जो अनाज होता था उसे डबल भी कर सकते थे। बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people from trouble। बिरसा ने कहता था कि उन्हें भगवान ने ही अपॉइंट किया है ताकि वो लोगों की सहायता करें। फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दिकूज। फ्री मतलब उन्हें आज़ाद करना। स्लेवरी यानी जो काम वो कर रहे थे, जो आउटसाइडर्स इंडिया में आके, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में, उन्हें भगाने के लिए। Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur। बीरसा का जन्म हुआ था एक मुंद्राज में, एक फैमिली में जो एक ट्राइबल ग्रुप है छोटा नागपुर में। But his followers included other tribals of the region, Santalas and Orans. All of them in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under the British rule। तो सारे लोग थे वो अलग अलग कारणोंवश अनहैप्पी थे, दुखी थे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस उनको एक्सपीरियंस करने मिल रहे थे और प्रॉब्लम्स उनको एक्सपीरियंस करने मिल रहे थे ब्रिटिश रूल में। Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat and their region appeared to be in danger। उनकी familiar ways, जैसे वो पहले लाइफ जीते थे वैसे वो नहीं जी रहे थे। वो उनकी जो लाइवलीहुड, वो जिस तरह से जी रहे थे वो भी मुश्किल हो रहा था और उनके रिलीजन पे बहुत सारे प्रश्न भी उठाए जा रहे थे। What problems did Birsa set out to resolve? Who were the outsiders being referred to as Dikus and how did they enslave the people of the region? कौन थे outsiders जिन्हें Dikus कहा जाता था और उन्होंने किस लिए इन लोगों को enslave करके रखा था, बंदिश बना के रखा था। What was happening to the tribal people under the British? क्या हो रहा था ट्राइबल लोगों का ब्रिटिश के रूल के अंडर? How did their lives change? उनकी लाइफ कैसी बदली? These are some of the questions you will read about in this chapter. You have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins। ज़्यादातर ट्राइब्स के कस्टम्स और जो रिचुअल्स होते थे वो काफ़ी अलग होते थे उन ट्राइबल्स एंड कस्टम्स से जो ब्राह्मण ने ले किए हैं। These societies also did not have the sharp social divisions that were characterized of caste societies। caste societies में कैसा होता था, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास, बट इन ट्राइब्स में ऐसा कोई क्लास नहीं था, ऐसा कोई सोशल डिवीजन नहीं था। All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship। ठीक है, जो भी उस ट्राइब में रहता था वो सब कॉमन ही होते थे और वो सब सारी चीज़ें शेयर करते थे। However, this did not mean that there were no social and economical differences within it। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस नहीं थे उस ट्राइब या कम्युनिटी के अंदर। How did tribals group live? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. Some were jhum cultivators. Some of them practiced jhum cultivation, that is shifting cultivation। कोई shifting cultivation practice करते थे। This was done on smaller patches of land, mostly in forest। और ये छोटे छोटे patches में किया जाता था, forest में ज़्यादातर। The cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burned the vegetation on the land to clear it for cultivation। वो ट्री टॉप्स कट करते थे ताकि सनलाइट ग्राउंड तक पहुँचे और वो जो वेजिटेशन जो लैंड पे है उसे बर्न कर ले ताकि वो कल्टिवेशन कर सके। These spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil। और वो ऐश स्प्रेड करते थे जो फायरिंग से आता था, आग से आता था, जो उसमें पोटैश होता था जो सॉइल को फर्टिलाइज करता था।
They use the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. वो axe यूज़ करते थे पेड़ कट करने के लिए और hoe करते थे स्क्रैच करते थे सॉइल से, ठीक है, कल्टिवेशन को प्रिपेयर करने के लिए. They broadcast the seeds, that is, scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. ठीक है, वो क्या करते थे, सीड्स को एक साथ ही स्कैटर कर लेते थे, बिछा देते थे फील्ड पे, एक एक सीड प्लाव करने से बेहतर ही था वो. वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड. एक बार वो क्रॉप रेडी हो जाता था और हार्वेस्ट हो जाता था, वो दूसरे फील्ड पे चले जाते थे. अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वॉज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स. एक फील्ड जो एक बार कल्टिवेट हो जाती थी वो दूसरी बार फैलो हो जाती थी. फैलो का मतलब है अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट द सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी. वो सॉइल को फर्टिलिटी रिकवर करने के लिए वो छोड़ देते थे. Shifting cultivators were found in the hilly and forest tactics of northeast and central India. The lives of these tribal dependent on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. इनकी लाइफ वही ट्राइबल पीपल की डिपेंडेंट होती थी, एक जहाँ से दूसरे जहाँ पे शिफ्ट करना है फॉरेस्ट में, और वो लैंड एंड फॉरेस्ट यूज़ करना है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. वही एक ज़रिया था शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करने का. सम वर हंटर्स एंड gatherers. In many regions, tribal group live by hunting animals and gathered forest produce. They saw forest as essential for survival. उन्हें ऐसा लगता था कि फॉरेस्ट एक बहुत नेसेसिटी है जीने के लिए. द कोंडास was such a community living in the forest of Orissa. फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा में रहते थे कोंडास. They regularly went out on collective hunts and then divided the मीट अमॉन्ग्स देमसेल्स. वो हर रोज़ हंट कलेक्ट करने के लिए जाते थे और जो भी हिस्सा उनका होता था उसे डिवाइड कर देते थे. दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड कुक फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ द साल एंड महुआ. तो वो फ्रूट्स खाते थे और रूट्स कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से और उससे कुक करते थे फूड को, और ऑयल जो यूज़ होता था वो एक्सट्रैक्ट किया जाता था सीड से, जो कि है साल और महुआ. They use many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local markets. ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत सारे फॉरेस्ट के shrubs और herbs वो यूज़ करते थे दवाइयों के लिए, और वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सोल्ड यानी बेच भी देते थे लोकल मार्केट में. The local weavers and leather workers turned to the kondas when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather. So ये जो local weavers होते थे, local market में लोग होते थे, वो leather workers होते थे और वो कोंडास की तरफ जाते थे क्योंकि उन्हें कुसुम और पलाश फ्लावर्स लगते थे वो अपने कलर्स को क्लोथ करने के लिए और लेदर के मटेरियल को चेंज करने के लिए. From where did these forest people get their supplies of rice and other grains? At times, they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. So वो क्या करते थे, वो exchange करते थे goods को, वो forest produce दे देते थे rice और grains के बदले. At other times, they bought goods with the small amount of earnings they had. और कभी कभी वो खुद खरीद लेते थे जिस छोटी मोटी earnings उनकी होती थी उससे. Some of them did odd jobs in the villages carrying loads or building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. कुछ लोग थे जो odd jobs करते थे villages में, जैसे load carry करना, roads को build करना, बाकी के labor करते थे peasants के साथ और farmers के साथ. When supplies of forest produce shrank, tribal people had to increasingly wander around in search of work as laborers. और जब इस forest का supply production कम हुआ, श्रैंक यानी कि कम होना, तभी ट्राइबल पीपल को यहाँ वहाँ भटकना पड़ा काम के लिए, लेबर के लिए. बट मैनी ऑफ देम लाइक द बैगाज ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स. और बैगाज जो थे रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स यानी किसी और के लिए काम करना उन्हें मंजूर नहीं था. द बैगाज सॉ देमसेल्व्स एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हु कुड ओनली लिव इन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट. बैगाज को अपने आप को सिर्फ फॉरेस्ट में ही देखते थे और उसमें जो प्रोडक्शन होता था उसी से वो अपना घर चलाते थे. इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ अ बैगा टू बिकम अ लेबरर. और बैगा के लिए लेबरर बनना उनके स्वभाव यानी उनके कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता था. Tribal groups often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. Tribal groups क्या करते थे, उनको खरीदने पड़ते थे goods and services और बेचने पड़ते थे
ताकि क्योंकि वो उनके स्पेसिफिक लोकेलिटी में प्रोडक्शन उसका नहीं होता था. दिस लेड टू द डिपेंडेंसी ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. इस वजह से उनकी डिपेंडेंसी बढ़ गई ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे जो पैसे देते हैं. Traders came around with things for sale and sold the goods at higher prices. Traders आते थे उनके पास कुछ चीज़ें लेने के लिए और वही चीज़ें वो हायर प्राइस में बेच देते थे. Money lenders gave loans with which the tribals met their cash needs. Money lenders loans दे देते थे इन ट्राइबल लोगों को जिस वजह से उनके पैसे के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे. Adding to what they earned. बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन्स वॉज यूजली वेरी हाई. लेकिन उस पे इंटरेस्ट चार्ज करके बहुत ज़्यादा हो जाते थे वो पैसे. सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेप्थ एंड पॉवर्टी. इसलिए ट्राइबल लोगों के लिए ये जो कॉमर्स मार्केट होता था वो ऑफन डेप्थ एंड पॉवर्टी यानी कि पैसे रिटर्न करने में ही उनकी आधी ज़िंदगी निकल जाती थी. इस वजह से उन्हें गरीबी फेस करना पड़ता था. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. इस वजह से जो मनी लेंडर और ट्रेडर है उन्हें वो एविल मानते थे, एविल आउटसाइडर्स यानी कि उनके लिए वो हेल्दी नहीं है क्योंकि उन वजह से उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी. Some herded animals. Many tribal groups live by herding and rearing animals. कुछ ट्राइबल ग्रुप्स क्या करते थे, उन एनिमल्स को हर्ड करते थे और रेयर करते थे. एनिमल्स को चारा पानी देते थे. They were pastorals who moved with their herds of cattle or sheep according to the seasons. और वो मूव करते थे from one place to another according to the seasons. When the grass in one place was exhausted, they moved to another area. एक particular area का grass अगर exhausted यानी ख़त्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह पे मूव हो जाते थे. The Van Gujjars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. The Gaddis of Kulu were sheep rearers. And the Bhakarwas of Kashmir reared goats. You will read more about them in your history book next year. Some took to settled cultivation. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. और कुछ लोग होते थे 19th सेंचुरी में, कुछ लोग थे कुछ ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने अपने आप को एक जगह पे सेटल कर लिया था और वहीं पे वो कल्टिवेट करते थे अपने फील्ड्स पे. ठीक है, और वो यहाँ वहाँ भटकते नहीं थे और उन्हें यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. They began to use the plow and gradually got rights over the land they lived on. In many cases, like the Mundras of Chotanagpur, the land belonged to the clan as a whole. ठीक है, तो वो प्लॉ करने लग गए उस पर्टिकुलर लैंड पे और उन्हें कुछ समय बाद उनको वो लैंड पे राइट्स भी मिल गई. राइट्स यानी कि वो उनका लैंड डिक्लेयर किया गया. बहुत केसेस में जैसे मुंद्राज ऑफ छोटा नागपुर, ये जो लैंड होता था टू द क्लैन एज अ होल, ये क्लैन का पूरे क्लैन का होता था. All members of the clan were regarded as descendants of the original settlers who had first cleared the land. और ये जो members जो भी उस clan के थे उन्हें वो clan का हिस्सा पूरा माना जाता था और original settlers who had first cleared the land. Therefore, all of them had rights on the land. इसलिए वो land पे सबकी rights होती थी. Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs and other followers. बहुत बार ऐसा हुआ है कि ये जो clan के अंदर ही बहुत कोई ना कोई पावर एक्वायर कर लेता था, कोई चीफ बन जाता था, बाकी फॉलोअर्स बन जाते थे. पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स. और जो पावरफुल लोग थे वो रेंट आउट कर लेते थे उनका लैंड, खुद से कल्टिवेशन उन्हें नहीं करना. इसीलिए British officials saw settling tribe groups like the Gonds and Santalas as more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. So British officers ने settle हुए tribe groups को ज़्यादा like Gondas, कॉन्ड्स एंड संतलास को बहुत सिविलाइज्ड माना रादर देन वो लोग जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, शिफ्ट अपना कल्टिवेशन शिफ्ट कर रहे हैं. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. उनको लगता था कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनको यहाँ पे शहरों में आके या गाँव में आके सेटल हो जाना चाहिए. How did colonial rule affect tribal lives? The lives of tribal groups changed during British rule. Let us see what these changes were. What happened to the tribal chiefs? Before the arrival of the British, in many areas the tribal chiefs were important people. They enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. उनके पास एक पावर, इकोनॉमी, पैसे का पावर होता था और वो राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल, खुद की टेरिटरीज को कंट्रोल करते थे.
In some places, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. कुछ जगहों पे उनकी खुद की पुलिस होती थी और वो डिसाइड करती थी लोकल रूल्स लैंड के और फॉरेस्ट मैनेजमेंट के. Under British rule, the functions and power of the tribal chiefs changed considerably. British rule के चलते ये जो functions और ये powers थे tribal chiefs के वो बदलते नज़र आए. They were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. So उनको अलाउ किया था कि लैंड के जो टाइटल्स यानी कि लैंड रेंट पे देने के लिए कल्टीवेशन के लिए, लेकिन उनके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी और इकोनॉमिक पावर थी वो उनसे छीन ली गई और उन्हें ब्रिटिश के जो लॉज हैं उसे फॉलो करने के लिए मजबूर किया गया. दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है, उन्हें ब्रिटिश को ट्रिब्यूट देना पड़ता था, उन्हें सलाम ठोकना पड़ता था और उनके रूल्स को फॉलो करना पड़ता था. दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमॉन्ग्स देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस. तो इस वजह से वो अथॉरिटी वो ऑलरेडी खो चुके थे जो वो एंजॉय करते थे और उन्हें अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस. और जो ट्रेडिशनल वेज थे उनके काम करने के वो काफ़ी चेंज हो गए थे. What happened to the shifting cultivators? The British were uncomfortable with groups who moved about and did not have a fixed home. और ये जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल थे, उनको सही नहीं लग रहा था वो ट्राइब लोगों को देखते हुए जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं और जिनका खुद का कोई घर नहीं है. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who are always on the move. उनके हिसाब से जो सेटल हुए लोगों को कंट्रोल करना ईजी हो जाता था और एडमिनिस्टर करना ईजी हो जाता था उनके मुकाबले जो यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं. द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट. और ब्रिटिश को एक रेगुलर रेवेन्यू इनकम की भी ज़रूरत थी स्टेट पे. सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स. That is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demands for the state. वो क्या करते थे, लैंड सेटलमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जहाँ पे वो लैंड को मेजर करते थे, उसके राइट्स को डिसाइड करते थे, हर इंडिविजुअल को जो मिलनी चाहिए और एक फिक्स रेवेन्यू जो उस लैंड से आएगा वो देखते थे. Some peasants were declared landowners. कुछ peasants को landowners declare किया गया. Other tenants, as you have seen chapter 2, the tenants were to pay rent to the landowner, who in turn paid revenue to the state. और ये जो tenants थे उनको rent पे करना पड़ता था landowner को और वो landowner revenue state को देते थे. The British effort to settle jhum cultivators was not very successful. ये ब्रिटिश के जो effort थे जूम कल्टिवेटर्स को सेटल करने के वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे. Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. प्लाउ कल्टिवेशन ईजी नहीं है वो एरिया में जहाँ पे वाटर कम है और सॉइल भी ड्राई है. In fact, jhum cultivators who took to plough cultivation often suffered since their fields did not produce good yields. जो झूम कल्टिवेशन करते थे उनको उन्होंने प्लाउ कल्टिवेशन लिया, उन्हें सफ़र करना पड़ता था क्योंकि उनके जो फील्ड पे अच्छे क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं होते थे. सो द झूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. तो झूम कल्टिवेटर्स ने कहा इन नॉर्थ इंडिया में कि हमें पुराने तरीक़ों से ही हमारा गुजारा हो सकता है, हम अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं. Facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. ठीक है, फिर वापस दंगे फसाद होने लगे, इस वजह से ब्रिटिश को लास्ट में अलाउ करना पड़ा उन्हें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो कुछ एरिया फॉरेस्ट के वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 45 पे हैं, फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट. The life of tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in forest laws had a considerable effect on tribals' life. Forest laws में अगर कोई changes होते थे तो उनकी लाइफ पे भी अफेक्ट होता था क्योंकि उनकी मेजर काम फॉरेस्ट में ही होता था. The British extended their control over all forests and declared that forest was state property. ब्रिटिश ने डिक्लेयर किया कि ये जो फॉरेस्ट है वो स्टेट की प्रॉपर्टी है.
Some forests were classified as reserve forests for their produced timber which the British wanted. कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया क्योंकि वहाँ पे टिम्बर प्रोड्यूस होता था. इन दीज फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स. इन फॉरेस्ट में उनको अलाउड नहीं था कि वो खुद से यहाँ वहाँ मूव हो सके, जूम कल्टिवेशन प्रैक्टिस कर सके, फ्रूट्स कलेक्ट कर सके, एनिमल्स को हंट कर सके. हाउ वर जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन. इस सिचुएशन में जूम कल्टिवेटर्स कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. Many were therefore forced to move to other areas in search of work and livelihood. कुछ लोगों को बाकी के एरियाज में जाना पड़ा टू सर्च वर्क एंड लाइवलीहुड. बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इन साइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम. लेकिन ब्रिटिश जैसे ही ट्राइबल लोगों को रोका फॉरेस्ट में रहने से तो कुछ प्रॉब्लम हुई. फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स. कहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेबर ले आएगा ट्रीज़ को कट करने के लिए, रेलवे स्लीपर्स के लिए और ट्रांसपोर्ट लॉक्स के लिए. Colonial officials came up with a solution. They decided that they would give jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the village would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So colonial officials ने एक solution लाया. उन्होंने कहा कि जूम कल्टिवेटर्स को छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड दिए जाएंगे कल्टिवेशन के लिए, ठीक है, लेकिन एक ही कंडीशन पे कि वो जो फॉरेस्ट में रहें, जो विलेजेस में रहेंगे, उन्हें लेबर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट का ध्यान रख पाए वो लोग. So in many regions, the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. बहुत सारे regions में forest department establish किया गया forest villages के लिए to ensure ताकि एक regular supply of cheap labor उन्हें मिलता रहे. Many tribal groups reacted against the colonial forest laws. They disobeyed the new rules, continued with practices that were declared illegal and at that time rose open in rebellion. लेकिन बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने वो लॉ के अगेंस्ट रिबेल किया. उन्होंने डिसोबे यानी उनकी बात नहीं मानी और इलीगल प्रैक्टिस से वो काम करते रहे वहाँ पे, और इस वजह से एक जंग छिड़ गई, ओपन रिबेलियन. Such was the revolt of Songram Sangma in 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. The problem with trade. During the 19th century, tribal groups found that trade and money lenders were coming into the forest more often. 19th century में ट्राइबल ग्रुप्स ने देखा कि ट्रेड और मनी लेंडर्स फॉरेस्ट में अक्सर आ रहे थे. more often wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. ठीक है, उन्हें फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए था, वो कैश लोन्स उन्हें ऑफ़र कर रहे थे और उनको वेजेस पे यानी तनख्वाह पे काम करने की मंजूरी दे रहे थे. It took tribal groups some time to understand the consequences of what was happening. Let us consider the case of the silk rovers. In the 18th century, Indian silk was in demand in European markets. Indian silk 18th century में demand में था European markets में. The fine quality of Indian silk was highly valued and exports from India increased rapidly. जो fine quality Indian silk से आता था वो काफ़ी valuable था और उसका export बढ़ते गया.